Does the government subscribe to this view that Muslims as a group cannot be trusted and they think negatively? Third point, sir. The third point, Chairman of Joint Intelligence Committee in White House Summit of Counter-Terrorism have rightly said India's core strength is liberal, secular, plural democracy. But I would like to know from the government that will this government, if it believes in secular, plural democracy, will it appeal against the trial court judgment of December 30 from the Mumbai trial court, which had given a leeway, a temporary leeway to the ruling party president? Will Kausar B, who's my sister, who was raped, drugged and murdered and her body was burned and thrown into a river, will this government, which talks about maximum governance, minimum whatever it is, will you appeal against that trial court judgment? I would like to know from the government through you, sir, when you talk about that Sabka Saath, Sabka Vikas is your basic tenet of your government, why is it? And when you talk about freedom of religion, February 17 Prime Minister's statement, freedom of religion, but within a week, his spiritual, his intellectual, his ideological guru made an obnoxious statement about a Nobel laureate. We want to know from you to the government, where does the truth lie? Does the truth lie with the Prime Minister of the Constitution? Does he still talks about Constitution? Or the truth lies with what his spiritual, ideological mentor, guru is saying? We want to know from the Prime Minister where the truth lies. Sir, the third point which I want to know from the government is, if what the Prime Minister says is right, he believes in freedom of religion, then what is happening in Kushinagar, Uttar Pradesh? 150 Muslim families have been forced to leave their house. Why? Because the good old person who's there. Sir, I want to know, why isn't this government able to control a cancer doctor, an oncologist who's spreading not his but his cancerous communalism throughout the country? Why is the government quiet on it? आदरणीय सभापति महोदय जी, हमारे देश में राजनीतिक कारणों से संप्रदाय का जहर घुलता चला जा रहा है और आज से नहीं चला जा रहा है, लंबे अरसे से चला जा रहा है, जिसने देश को तबाह करके रखा हुआ है, दिलों को तोड़ने का काम किया है। लेकिन सवाल हमसे पूछे जा रहे हैं, हमारी भूमिका क्या है? मैं आज जरा इस सदन को कहना चाहता हूं, 27 अक्टूबर 2013 मैं पटना में था, गांधी मैदान में था। बम धमाके हो रहे थे, निर्दोष लोग मौत के घाट उतारे गए थे, लाखों की जनमेदनी थी, बड़ा ही कलुषित माहौल था, रक्त की धाराएं बह रही हैं। उस समय जब इंसान के हृदय से बातें निकलती हैं, वो सच्चाई के तराजू पर 100% सही निकलती है, उसमें कोई लाग लपेट नहीं होता है। बम बंदूक के बीच रक्त बह रहा था, लोग मर रहे थे। उस समय मेरा जो भाषण है, और उसमें मैंने कहा था कि मैं कहना चाहता हूं, मैं पूछना चाहता हूं कि बताइए, हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। हिंदुओं को किसके साथ लड़ना है? क्या मुसलमान के साथ लड़ना है कि गरीबी के साथ लड़ना है? मैं मुसलमानों को पूछता था कि आपको हिंदुओं को साथ लड़ना है कि गरीबी के खिलाफ लड़ना है? और मैंने कहा था, आइए, बहुत लड़ लिया, हिंदू मुसलमान एक होकर के हम गरीबी के खिलाफ लड़ाएंगे। पटना के गांधी मैदान में बम बंदूक और पिस्तौल और गोलियों के बीच में उठाई हुई आवाज है। भारत को प्रेम करने वाले हर व्यक्ति के लिए ये बात साफ है, यह दाइश विविधताओं से भरा हुआ है। विविधता में एकता, यही हमारे देश की पहचान है, यही हमारी ताकत है। हम एक रूपता के पक्षकार नहीं है।
हम एकता के पक्षकार हैं और सभी संप्रदायों का फलना फूलना ये भारत की धरती पर ही संभव होता है। ये भारत की विशेषता है। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारा जो संविधान बना है वो संविधान हजारों साल के हमारे चिंतन की अभिव्यक्ति है। हमारा जो संविधान बना है वो हमारे भारत के सामान्य मानव की आशा आकांक्षाओं की प्रतिबिंबित करने वाला संविधान है। और इस संविधान के मर्यादा में रह करके देश चल सकता है। देश संविधान की मर्यादाओं के बाहर नहीं चल सकता है। किसी को भी कानून हाथ में लेने का अधिकार नहीं होता है। किसी को भी संप्रदाय के आधार पर किसी के साथ डिस्क्रिमिनेशन करने का अधिकार नहीं होता है। हर एक किसी को अपने साथ चलने का अधिकार है। और मेरी जिम्मेवारी है सरकार में बैठा हूं, सरकार कैसे चलेगी उसकी जिम्मेवारी है। और इसलिए मैं आपको कहना चाहता हूं और मैं बार बार कहता हुआ आया हूं, संप्रदाय के नाम पर अनाप शनाप बातें करने वालों को कहना चाहता हूं, मैं ये कहना नहीं चाहता हूं आज मैं आपका मुंह बंद करने के लिए मेरे पास हजारों चीजें हैं, मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं, इसके लिए मैं समय बर्बाद नहीं करता हूं। लेकिन मैं आपको कहना चाहता हूं हमारा कमिटमेंट क्या है वो मैं आपको कहना चाहता हूं। मैंने बार बार कहा है मेरी सरकार का एक ही धर्म है। मेरी सरकार का एक ही धर्म है इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है सबका साथ सबका विकास। मेरी सरकार का एक ही धर्म है इंडिया फर्स्ट। मेरी सरकार का एक ही धर्म ग्रंथ है भारत का संविधान। मेरी सरकार की एक ही भक्ति है भारत भक्ति। मेरी सरकार की एक ही पूजा है 125 करोड़ देशवासियों का कल्याण। मेरी सरकार की एक ही कार्यशैली है सबका साथ सबका विकास। और इसलिए हम संविधान को लेकर के संविधान की सीमा में रह करके देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। हमारे यहां एकम सत विप्रहा बहुधा वदंती हमारा तत्व ज्ञान रहा। ट्रूथ इज वन सेज कॉल्स इन अ डिफरेंट वे। सत्य एक है, विद्वान लोग उसको अलग अलग तरीके से कहते हैं। ये हम कहने वाले लोगों में से है। और इतना ही नहीं, यही देश है जहां गुरु नानक देव ने क्या कहा है। गुरु नानक देव ने कहा है सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। सब में ही रब रेहिया प्रभु एकाई। पेख पेख नानक बिगसाई। The one God pervades within all, beholding him in all, नानक in delighted। ये हमारा तत्व ज्ञान रहा है।